Hello, my dear students. Welcome to mathematics class. Dear students, we are doing unit 9 and 9.1 of your NCERT book, and the name of the unit is Some Applications of Trigonometry. Dear students, in this unit, we are learning how to find out the height of any tower or building or any object, and how to find out the angle of inclination, etc. Till now we have done 10 questions, and now we are going to start with 11th question. So let's see what is 11th question. So here is 11th question. A TV tower, here is a TV tower, stands vertically on a bank of a canal. बैंक मीन्स किनारे पर है किसी नहर के. कैनल मीन्स नहर. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक मीन्स ये हमारी रिवर है और ये एक किनारे पर टावर है और दूसरे किनारे पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, बिल्कुल उसके अपोजिट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. कि अगर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ टावर के टॉप को देखेंगे, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर और दूर चले जाएं अगर, द line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. That means the another point is 20 meter away from this point, and from this point the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. This is what we have to find out. So let's see how to do. So dear students, as you can see in this picture, that here is a TV tower and a canal is there. This is a canal, and from this point, this is the bank of the river. This B and C are the bank of the canals. Means किनारे, एक किनारे पर टावर है और तो दूसरे किनारे पर ये पॉइंट लिया. फ्रॉम हियर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द tower is 60 degree, and from a point 20 meter away from this point the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Means this distance is given to us, and we need to find out the width of the canal means BC distance, and height of the tower means AB. This is what we have to find out. So now as you can see in the figure, we have two triangles. One is making 60 degree triangle, triangle ABC, and another is ABD, in which 30 degree angle is there. So let us make a use of both the triangles. So let us first of all quickly find out, let us use triangle ABC. So in triangle ABC, perpendicular we need to find out and base we need to find out. So we will take tan, because perpendicular and base are required to be included. So tan 60 degrees √3 divided by AB is H. We need to find out. We can write it as H, or we can keep it as AB also. Then BC is X. So from here we can, by cross multiplication, we can say H is equal to √3x. So let us mark this as equation number 1. As I told you, if we are not able to solve it further, then leave the equation and start moving with the another triangle. You will automatically you will get the way to solve the question. So now let us start with another triangle. In triangle, the bigger one, ABD. A, B and D. So again, AB is required and this base is included, BD base. So we will take tan, and now 30 degrees there. So perpendicular is again AB upon base is BD. So this is 1 by √3 is equal to AB is H and BD. Now BD is the sum of the width of canal plus this 20 degree. So X plus 20 will give us the BD. So X plus 20. So from here also let us find out the value of H by cross multiplication. Let me take it to the other side. So I'll get X plus 20 divided by √3 is equal to H. So this is our second equation. And now as you can see, if you'll compare 1 and 2, their one side is equal, that is H and H. I told you earlier also, we can say that put the value of H in from one equation to 2, or we can say compare.
So if one side of the two equation is equal, automatically the second side will become equal. So we will write comparing 1 and 2. Comparing 1 and 2. So what do we get from here? We'll get x plus 20 by root 3 is equal to, from here h is equal to root 3x. So let us cross multiply it. Root 3 into root 3 will become 3x is equal to x plus 20. So 3x is equal to x plus 20. So let us take the like terms. 3x minus x is equal to 20. So 2x is equal to 20. X is equal to 10 meters. So that means this, from here we'll get the width of the canal. Therefore the width of the canal is 10 meters. Now we need to find out the height of the tower. As you know that now we have the value of width x. By putting the value of x either in 1 or 2, we'll get the value of h. So put x is equal to 10 meters in equation 1. So we'll get h is equal to 10 root 3 meters. Unit लिखना नहीं भूलेंगे. This is meters. So therefore again let us write down height of tower is equal to, we must write down the answer is 10 root 3 meters. We can leave the answer in this way also, or we can put the value of root 3 in this. So this is your question. I hope it is clear to you. Now let's move on to question number 12. Now dear students, our next question is, from the top of a 7-meter high building. तो एक बिल्डिंग बना लेंगे हम which is 7 meter high. इसके टॉप से, so this is the top of the building. From the top of the 7 meter high building, the angle of elevation of the cable tower is 60 degree. तो अगर इसका टॉप ये है और यहाँ से हमें टावर का टॉप देखना है, दिस इज़ द टावर, तो ऑब्वियसली ये दोनों हमें अलग बनाने पड़ेंगे. अगर मैं टावर इसके ऊपर बना दूंगी तो यहाँ से कैसे देख सकते हैं हम उसका टॉप? So we will make them separately. In some questions it is given that the elevation that the tower is lying on the building, but in this case, तो जब भी हम एंगल बनाएंगे बेटा, वी मस्ट मेक दिस हॉरिजॉन्टल. एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, ना कि इसके साथ. अगर आपने ऐसे बनाया दैट विल बी रॉन्ग. तो हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, एंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू अस एज 60 डिग्री. ये हमें 60 डिग्री दिया. दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, राइट. नाउ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट और top of the cable tower is this, and the angle of depression of its foot is 45 degree. के टावर के टॉप का एलिवेशन इतना है और इसी के बॉटम का इट्स बॉटम. तो टावर का बॉटम कौन है? ये इसका बॉटम हो गया. इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑब्वियसली यहाँ बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है, टॉप को देखना है तो वो ऊपर की तरफ देखेगा, दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट टॉलर देन द बिल्डिंग. और बॉटम को देखना है तो वो कहाँ देखेगा? वो नीचे की तरफ देखेगा. तो ये नीचे की तरफ नज़रें जाएंगी. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. तो जब भी डिप्रेशन वाला एंगल बनता है डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर, जब भी डिप्रेशन वाला एंगल बनेगा तो वो एंगल ऊपर हवा में ही बनाना है हॉरिजॉन्टल के साथ. एंड दिस एंगल इज गिवन टू अस एज 45 डिग्री. तो इस तरह से वी विल गेट टू एंगल्स. दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. फ्रॉम हेयर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर. तो अगर मुझे ऊपर देखना है दैट मीन्स टावर की हाइट ज़्यादा है. तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई है. एंड इट्स बॉटम एंगल इज़ 45 डिग्री. ठीक है. तो इन दिस वे यू विल गेट दिस फिगर. नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू फाइंड आउट? डिटर्मिन द हाइट ऑफ द टावर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी नीड टू फाइंड आउट दिस कंप्लीट हाइट. कि हाइट ऑफ द टावर है जो हमें फाइंड आउट करना है. बट अगर हम इस फिगर को देखें तो टावर का एक पार्ट बिल्कुल इक्वल है बिल्डिंग के इस पार्ट के, बिकॉज दीज टू 90 पर जब भी हम एज्यूम कर रहे हैं, ये भी 90 है, टावर भी 90 है, तो हमेशा अपोजिट साइड अपोजिट लाइंस क्या होंगी? पैरेलल.
तो ये जो सरफेस हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं ये ग्राउंड के पैरेलल होता है। तो अगर ये हाइट 7 है तो टावर का जो इतना हिस्सा होगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर्स हो जाएगा। मैं ले सकती हूँ यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो कुछ पोर्शन हमें पता चल गया है टावर का, और बाकी का हम ये निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, देन विल गेट द कंप्लीट हाइट। तो इसे मैं मान लेती हूँ x, सो लेट इट बी x। तो हाइट ऑफ द टावर जो मिलेगी मुझे कैसे मिलेगी, हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू x + 7 मीटर्स। तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी है। नाउ लेट मी मार्क द ट्राइंगल्स कैन बी यूज्ड। तो एक ट्राइंगल तो ये ले सकते हैं जिसमें 60 डिग्री एंगल है, तो ये हम इसे नाम दे लेते हैं, लेट इट बी ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो हम ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ये पार्ट हमें रिक्वायर्ड है एंड इट इज़ अपोजिट टू द एंगल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। और बेस और हाइपोटेन्यूज कॉमन तो नहीं है, बट बेस हमारा किसके इक्वल हो सकता है, जो हमारा ग्राउंड है उतनी ही लेंथ होगी इस हॉरिजॉन्टल की भी। अगेन अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो हम बी सी लेंगे। तो विल टेक tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। So it is √3 is equal to AB is x upon BC, we don't know। तो यहाँ से हमें BC मिल जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC ऊपर ले जाते हैं, √3 नीचे, x बाय √3। तो इस तरह से बेस हमारा जो कि कॉमन है तो नहीं, लेकिन बेस इक्वल हो सकता है। अब इस ट्राइंगल को हम ले सकते हैं, इसमें हमारे पास 45 डिग्री दे रखा है, तो BCD एंगल ले सकते हैं हम, BCD ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है, जब भी डिप्रेशन एंगल हमें दिया होता है तो हम इसे नीचे लेके आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल भी हम 45 मार्क कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम ये ट्राइंगल पर अप्लाई करते हैं, बट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन दिस ट्राइंगल ऑल्सो, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड जो एंगल के वो हमें पता है। और जो ये वाला, अगर ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा बिकॉज दिस इज़ 90, तो ये क्या बनी, बेस BC विच इज़ कॉमन टू द अबव ट्राइंगल ऑल्सो। तो इसलिए हम ये नीचे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, सेम ही बात आएगी। परपेंडिकुलर यहाँ 7 है तो इसका भी 7 है। यहाँ अगर ये BC होगा तो यहाँ हम ग्राउंड का वो उतना ही मिलेगा BC। तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सो बट राइट नाउ आई एम डूइंग इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो इन ट्राइंगल BCD, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है BD, और ये थर्ड साइड BC बेस। सो अगेन वी विल राइट इट एज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उल्टा राइट ट्राइंगल बना हुआ है ये। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan 45 इज़ 1, BD इज़ 7, BD जस्ट अपोजिट है बिल्डिंग के, 7 मीटर्स अपॉन BC। तो यहाँ से भी हम BC की वैल्यू, BC मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ BC इज़ इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ से भी BC मिल गया, यहाँ से भी, तो क्या कर सकते हैं हम, BC की वैल्यू पुट कर दें या बोल दें कंपेयरिंग 1 and 2। सो वी विल राइट कंपेयरिंग 1 and 2। तो एज आई टोल्ड यू कि अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x अपॉन √3 इज इक्वल टू 7 मीटर्स, x इज इक्वल टू 7 √3 मीटर्स। सो दिस विल बी द, दिस पार्ट AB, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमने लिखा था, कैसे मिलेगा, तो हाइट ऑफ द टावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट में हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा हमें, x + 7 इज इक्वल टू, x की वैल्यू 7 √3 + 7, 7 कॉमन निकाल लेंगे, √3 + 1 meters. So this will be the height of the tower. So I hope it is clear to you. So similarly, dear students, try the next question also. That's all for now. Thank you.